কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবিভিরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীজীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্বে প্রথম খণ্ডে আজ আমরা নবম পুরাণং বৃন্দাবন পর্বে শুভারম্ভ করব। নমো বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতি ভক্তিবেদান্ত স্বামীতে নাম্নে নমস্তে সারস্বতী দেবী গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে শিল প্রভুপাদ কি জয় হোক। প্রথম অনুবাদ। এই নবম পুরাণে নিজ বৃত্তি দ্বারা জীবন যাত্রার নির্বাহক এবং স্বীয় পত্নীগণ সমবেত গোপগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ বলরাম বৃন্দাবনে প্রবেশ লীলা বর্ণিত হইবে। তারপর অন্য দিবসে সভা প্রকাশিত হইলে শ্রীমান ব্রজরাজ স্নিগ্ধ কণ্ঠে কে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস স্নিগ্ধকণ্ঠ, এই দুইটি বৃক্ষ ব্রজ মধ্যে অভীষ্টদায়ক বলিয়া দেবতুল্য হইয়াছিল, অতএব ইহার পূর্ব জন্মেই বা কিরূপ ছিল, এই স্থানই বা কিরূপ আসিল এবং সম্প্রতি বা কিরূপ ভাব কোথায় গেল, এসে पूछा। हिंदी। तदंतर अन्य दिन भी दैदीप्यमान सभा के बीच में श्री ब्रजराज ने पूछा कि वत्स स्निग्ध कंठ, वे दोनों वृक्ष इस ब्रज में संकल्पित अभिष्ट वस्तु देने वाले होने के कारण देवताओं के समान थे। उससे पहले जन्म में वे कैसे थे और इस ब्रज में किस कारण से आ गए, एवं इस समय वृक्ष योनि से छूटकर किस रूप से कहाँ चले गए। স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, পূর্বে শ্রী শিব মিত্র অলকাপতি যক্ষরাজ কুবের হইতে এই দুইজন উৎপন্ন হয়, মানে উনকা পুত্র था कुबेर का। কিন্তু लेकिन একদা একদিন দেবর্ষি নারদের প্রতি দৃষ্টতা প্রকাশ করায় দেবর্ষি তাহাদের উপর নিগ্রহ প্রকাশ করেন। পরে উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ করাতে বৃক্ষজনী প্রাপ্ত হইয়া ভগবত ভক্তা লাভ করিয়াছিল। যে যে সময় আপনাদের অবতার হইয়া থাকে সেই সেই সময়ই মহাবনস্থিত ভবদীয় গৃহের নিকট প্রদেশে উভয়ে যমুলজ্জন বৃক্ষ বেশে অবস্থান করিয়া থাকে। এতদিনের পর তাহারা নিজ গতি প্রাপ্ত হইয়া পরম ভগবত ভক্ত হইয়াছে, কিন্তু সম্প্রতি ভগবত ভক্তির ফলে পরিণাম প্রকাশ করিয়া বিদ্যমান আছে। হিন্দি। स्निग्धकंठ बोला, पहले शिव जी के मित्र अलकापति यक्षराज श्री कुबेर से उत्पन्न हुए थे, किंतु किसी समय देवर्षि वगैरह श्री नारद जी के प्रति घृष्टता कर बैठे। इन दोनों वृक्षों का सारा वृत्तांत श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के 10वें अध्याय से पढ़ सुनकर समझ लेना चाहिए। घृष्टता, निग्रह, अनुग्रह आदि का सारा ज्ञान हो जाएगा। पश्चात श्री देवर्षि वगैरह के द्वारा किए गए निग्रह रूप अत्यंत अनुग्रह के द्वारा वृक्ष होने पर भी भगवान के भक्ति भाव को प्राप्त हो गए। आपके प्रत्येक अवतार के समय उत्पन्न होने वाले महावन में विराजमान आपके घर के समीप वाले स्थान में यमला अर्जुन के वेश में स्थित रहे। इसके पश्चात अपनी वास्तविक गति को प्राप्त होकर परम भगवत भक्त भी हो गए, किंतु इस समय तो वे दोनों भगवान की भक्ति के परिणाम को प्रकाशित करते हुए प्रेमी भक्तों के प्राप्त स्थान पर विद्यमान हैं। ব্রজরাজ সকৌতুকে বলিলেন, তুমি তথা প্রকাশ করিয়া বলো, সম্প্রতি তাহারা দুইজনে কোথায় গমন করিয়াছে। তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার মুখপদ্ম নত করিয়া যেন মৌন অবলম্বন পূর্বক অবস্থান
কটাক্ষ নেত্রে মধুকণ্ঠকে নিরীক্ষণ করিলেন। ব্রজরাজ যেন সংকুচিত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন বলিলে না? স্নিগ্ধ কথা আদরের সহিত বলিলেন, মহারাজ আমি কি বলিব? আপনারা পূজ্যপাদ নিজেই ইহা জানিতে পারিবেন। ব্রজরাজ মৃদু হাস্যে বলিলেন, সত্যি তোমরা বাক্য পুনরক্তা হইয়াছ। যেহেতু তোমার মূল অবলম্বনে করিয়া বলিয়া দিতেছ, এইরূপ প্রকৃতি বা ছিল হেতু আমরা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছি, তথাপি তুমি আমাদিগকে নিজ মুখ দ্বারা পরম সুখে জনিত করো। স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, সর্ব সুখ বর্ষী শ্রীমান দেবর্ষী পাদ অধম লোক দেখিয়া তাদের বিষয়ে দুইজন সদ্গতি প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই দুইজন তাহারা কৃপায় জ্ঞান লাভ করিয়াছে। আমরা দুইজন বিদ্যমান রইয়াছি। আমরাই দুইজন বিদ্যমান রয়েছে। ও আমি দুই ভাই গায়ে। हरे कृष्ण। स्निग्ध कंठ और मधु कंठ। जय जय जय। ये तो मालूम ही नहीं था। ये दामोदर लीला बोलना पड़ेगा अगले बार यहाँ से। हिंदी। श्री ब्रजराज कौतुक पूर्वक बोले, सत्य सत्य कहो बेटा, इस समय वे दोनों कहाँ चले गए हैं? तदंतर स्निग्ध कंठ अपने मुख कमल को नवाकर चुप सा होकर कटाक्ष पूर्वक मधुकंठ को देखने लग गया। ब्रजराज बोले, संकुचित से होकर तूने कुछ भी क्यों नहीं कहा? स्निग्ध कंठ आदर पूर्वक बोला, महाराज हम क्या कहें, पूज्यपाद आप स्वयं ही जान लेंगे। ब्रजराज मुस्कुरा कर बोले, सत्य ही तुम्हारा कहना पुनरुक्त ही हो जाएगा, कारण इस विषय में तुम्हारा मौन ही सब कुछ कह रहा है। रीति भांति के कारण हम सब समझ गए हैं, तथापि अपने मुख से कहकर ही तुम हम सबको सुख से युक्त करो। स्निग्ध कंठ बोला, सब सुखों के वृष्टि करने वाले पूज्यपाद देवर्षि वर्षि नारद जी महाराज की अधम पतित दीन जनों पर जो अहेतु की कृपा, उसी के द्वारा जिनको यह ब्रजवास रूपी गति मिली है एवं भगवत तत्व ज्ञान संबंधी सर्वज्ञता प्राप्त हुई है, बस समझ लीजिए कि वे दोनों नलकुवर मणिगिर नामक कुबेर के पुत्र या यमलार्जुन नामक वृक्ष हम दोनों के रूप में स्पष्ट रूप से आपके समक्ष विद्यमान हैं, अर्थात वे दोनों दुर्दांत ही हम दोनों हैं। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীমান ব্রজরাজ প্রভৃতি সকলে উভয়ের মুখদর্শন পূর্বক আহ্বান করিয়া পুনর্বার কৌতুকের সহিত সহর্ষে মিলিত হইলেন এবং মধ্যে উপবেশন করাইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। আরে এ বই हिंदी। यह सब वृत्तांत सुनकर श्री ब्रजराज प्रवृत्ति सभी जन उन दोनों के मुख को देखकर अपने अपने पास बुलाकर पुनः कौतुक सहित सुख पूर्वक उन दोनों से भुज भर कर मिले तथा बीच में बैठाकर आंख फाड़ फाड़ कर दोनों की ओर निहारने लग गए। পুনর্বার ব্রজরাজের প্রশ্ন উত্তরের মধুকণ্ঠ অবসর প্রাপ্ত কথার প্রস্তাব করিলেন। पश्चात श्री ब्रजराज के प्रश्न से अनंतर क्रमशः अवसर प्राप्त कथा को मधुकंठ कहने लगा। যে সময় এরূপ অপূর্ব বিচিত্র চরিত্র সংঘটিত হয়, সেই সময় হইতে 5 দিনের পর শ্রীমান উপনন্দ নিজে গৃহে গমন করিয়া আপনার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে অদ্য নিজ দেবের ব্রজরাজের গৃহে কি তোমার গমনরূপ মঙ্গল কার্য হইয়াছে? পত্নী বলিলেন, হ্যাঁ। আহা, কি আবার বলিতে হয়? কোন ব্যক্তি বা তাহার গৃহে গমন ব্যতীত আপনার মন সুস্থির রাখিতে পারে? বিশেষত আপনাদের ন্যায় নিকট সম্বন্ধীদের মাদৃশ জনের আর কথা কি? পতি বলিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে তা বলো। हिंदी। इस प्रकार का विचित्र चरित्र जिस दिन हुआ, उस दिन से 5 दिन के पश्चात श्रीमान उपनंद जी ने अपने भवन में पहुंचकर अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि प्रिय, अपने देवर ब्रजराज के घर में आज तुम्हारे द्वारा गमन रूपी मंगल कार्य हुआ कि नहीं? अर्थात
आज तुम उनके घर गई कि नहीं? पत्नी बोली, और क्या, अर्थात मैं अवश्य गई, क्योंकि महावन में ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी ब्रजराज के घर जाए बिना अपने मन को मना सकता है। ठीक आप जैसे निकटवर्ती संबंधियों की तरह हम भी तो वैसे ही संबंधी हैं, फिर हम जाए बिना कैसे रह सकते हैं? पति बोले, यदि कोई विशेष बात हो तो कहो। দেখুন, অনিন্দিত গর্ভাধারণের বিধান সমর্থা জননী প্রভৃতি গুরুগণ ভীত হইয়া এই দুই বালক রামকৃষ্ণকে রক্ষা করিতেন। তথাপি খেলার সময় উভয়কে দেখিতে কেউই পারগ হইবেন না বলিয়াই ওই রামকৃষ্ণ সকলেরই ব্যাকুলিত করিতেন। তন্মধ্যে তাদ্দাকার বৃত্তান্ত অবগত হন। হিন্দি। पत्नी बोली, जिस वस्तु में अधिकतर प्रेम होता है उसमें भय की अधिकतर आशंका देखी जाती है। देखो, नेत्र जैसे शंका के विषय हैं, उस प्रकार कान आदि अन्य अंग शंका के विषय नहीं हैं। और देखो, अच्छी प्रकार रक्षा करने में समर्थ माता आदि सभी गुरुजन भयभीत होकर ही यद्यपि उन दोनों कृष्ण बलदेव नामक बालकों की रक्षा करते रहते हैं, तथापि खेलते समय उन दोनों को संभालने के लिए किसी की भी सामर्थ्य न होने के कारण वे दोनों भाई शुक्ल, दाता, भोक्ता सभी को व्याकुल कर देते हैं। उसमें आज के वृत्तांत को सुनो, समझो। আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত ব্রজেশ্বরের খাদ্য সামগ্র সম্পাদন করিবার জন্য যশোদা সহর্ষে ব্যস্ত হইলেন এবং রোহিণীও তদীয় সাহায্যকারিণী হইলেন। ধাত্রীগণ গমনাদি বিষয়ে আমাদের প্রতিবন্ধক হইবে, এইরূপ ভাবে ধাত্রীদেরকে আশঙ্কা সম্পদ বিবেচনা করে তাহাদেরকে বঞ্চনা করিয়া আপনার ভাতৃপুত্র দুইটি অত্যন্ত দূর দেশে গমন করিয়াছিলেন। হিন্দি। सभी आत्मीय जनों के सहित ब्रजेश्वर की जो खाद्य सामग्री उसको बनाने के लिए आनंद युक्त श्री यशोदा जी के व्यस्त हो जाने पर तथा श्री रोहिणी जी के भी उन्हीं के सहायकारिणी बन जाने पर हमारे स्वतंत्र खेलने में ये धाइयां ही रोकने वाली होंगी। इस प्रकार की शंका की पात्र उन धाइयों को भी धोखा देकर आपके छोटे भैया के वे दोनों लाला बहुत दूर भाग गए। বঞ্চনা যথা, যখন ধাত্রীগণ অপর কর্মে ঈষৎ ভাবে মন সমর্পিত করিল, তখন তাহাদের অগ্রে তাহাদের বাম এবং দক্ষিণ ভাগে নেত্রদ্বয়ের অগোচর স্থানে এবং যে স্থানে লুক্কায়িত হইয়া থাকিতে পারে না, সে স্থানে এই দুই ভ্রাতাক্রমে কপট ক্রীড়ার ছলে চলিয়া যান। দৌড়াইয়া গিয়া দূরে অবস্থান করেন, তারপর তথা উদ্ধকণ্ঠের স্বরে স্বাধীনভাবে চিৎকার পূর্বক নিজ বন্ধুগণের সহিত কোলাহল করিয়া থাকেন। देखो, धाइयां जिस समय दूसरे काम में किंचित मनोयोग देने लग गई, उसी समय उन्हीं के आगे से उनके बाएं दाएं भाग में दोनों नेत्रों से न देखने योग्य स्थान में एवं जहां पर दुबक के ठहरा जा सके ऐसे स्थान में वे दोनों भैया कपटमयी कीड़ा के बहाने क्रमशः चले गए और दौड़कर दूर खड़े हो गए तथा वहां पर मुश्किल अपने मित्रों के सहित ऊंचे स्वर से हल्ला गुल्ला करने लग गए। কোলাহল, আল্লাহ কোলাহল লিখে বেঙ্গলি में। তারপর ওই বালকদ্বয়ের রক্ষা কার্যে যে সকল ধাত্রী যুক্ত ছিল তাহারা রূপে সততায় প্রতারিত হইয়া ক্ষণকাল পরে অবদান পূর্বক হইয়া শীঘ্রই অনুসন্ধান করিল এবং ক্রমে ক্রমে অনেকক্ষণ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের নাম ধরিয়া যে আহ্বান করা হইয়াছিল তাও বৃথা হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় বলিয়া নিজেশ্বরী যশোদা
এবং রোহিণীর নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন। হিন্দি। तदंतर इस प्रकार उन दोनों बालकों की रक्षा के लिए नियुक्त धाइयों ने धोखे में पड़कर क्षणभर बाद सावधान होकर शीघ्र ही उन दोनों को ढूंढकर क्रम से उन दोनों का नाम ले लेकर बुलाया भी। पश्चात अपने बुलाने को निष्फल समझकर अपनी स्वामिनी श्री यशोदा एवं रोहिणी के निकट जाकर निवेदन कर दिया कि वे दोनों उद्यमी हमारे बुलाने से घर नहीं आते हैं। তারপর রামজননী মানে রোহিণী মাতা ব্যাকুল দেহে ও ব্যাকুল চিত্তে তথায় গমন করিয়া নদী তীরগত অর্জুন বৃক্ষের ভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। जब तक उसने उसने निवेदन किया तब तक तो वे दोनों गंभीर जमुना नदी के तीर पर चले गए। ऐसा समाचार सुनकर श्री यशोदा जी ने उन दोनों को लिवाने के लिए बलराम की माता श्री रोहिणी को भेज दिया और कहा कि हाय बहन जी, जाना नहीं जाता, यमलार्जुन वृक्षों की तरह किसी दुर्जन के द्वारा प्रेरित होकर कोई वृक्ष अथवा नदी का तट गिर जाएगा तो महत्ती आपत्ति आ जाएगी। मैं तो भोजन बनाना रूपी कर्म विपाक में बंधी हुई हूँ, अतः तू ही स्वयं शीघ्र चली जा। তারপর रामजननी सॉरी ये आपने पढ़ा रामजननी, ये स्किप हो गया ना 13 नंबर। 13 नंबर नहीं पढ़ा। आप पढ़ लिए क्या ये? हाँ। तदंतर तन मन से व्याकुल होती हुई श्री रोहिणी माता वहां चली गई और नदी के तीर में विद्यमान यमलार्जुन को तोड़ने वाले श्री कृष्ण को बुलाने लग गई। তথাপি ক্রীড়ারঙ্গে আকুল হইয়া সঙ্গীজনের নিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণ রোহিণীর আহ্বান অঙ্গীকার করিলেন না এবং বলভদ্র শ্রীকৃষ্ণেরই ইচ্ছা অনুবর্তী হইয়া গ্রাহ্য করিলেন না। তখন রোহিণী পরাবৃত্ত হইয়া গৃহে আগমন করিলেন এবং তাহার জননী ব্রজেশ্বরী প্রেরণ করিলেন। যেহেতু ব্রজেশ্বরী উভয় বালকেরই পক্ষে কিঞ্চিত ভয়ের কারণ, অর্থাৎ রোহিণী অপেক্ষা যশোদাকে উভয়ে কিছু ভয় করিয়া থাকেন। उसके बाद श्लोक आता है। पेज ऊपर कर दीजिए माता जी, मिताली माता जी। किंतु क्रीड़ा के रंग में आकुल होने के कारण संगी जनों के नियंता श्री कृष्ण ने जब मोहिनी माता के बुलाने को अंगीकार नहीं किया एवं बलभद्र जी ने भी श्री कृष्ण की इच्छा के अनुकूल होकर स्वीकार नहीं किया, तब तो श्री मोहिनी जी ने लौटकर घर आकर कृष्ण के लिए किंचित भय की स्थान स्वरूप एवं उनकी उत्पत्ति स्थान स्वरूप श्री यशोदा जी को ही बुलाने को भेज दिया। तथा चो तदा चो ब्रजेश्वरी कृतं, তারপর তাহার মাতা গমন করিয়া বালক দিগের সহিত এবং রামের সহিত কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছেন দেখিয়া স্তন দুগ্ধোচ্ছলে স্নেহ বর্ষণ করে আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পলায়ন সংজ্ঞা সাধ্য তাহার নিকটে নয়। পলায়ন সংজ্ঞা করিয়া সহসা তার নিকটে গমন করিলে না। এই আহ্বান মাধুরী যতদূর সুন্দর হইতে হয় তাহা আপনারা আস্বাদন করুন। तदंतर श्री कृष्ण की माता ने यमुना के तीर पर जाकर ब्रजवासी बालकों के सहित एवं बड़े भैया के सहित खेलते हुए अपने पुत्र को देखकर दूध के बहाने मूर्तिमान स्नेह की वर्षा करते हुए बुलाना प्रारंभ कर दिया, किंतु श्री कृष्ण के दूर भाग जाने की आशंका से सहसा उनके पास नहीं गई। और हे पतिदेव, श्री यशोदा जी के द्वारा बुलाने की जो यह माधुरी है, इसका तो आप अच्छी प्रकार आस्वादन करें। दशम स्कंदे एकादश अध्याय नवम श्लोके যথা দূর হইতে যশোদা ডাকিতে লাগিল, হে কৃষ্ণ, হে অরবিন্দাক্ষ, হে তাঁত, শীঘ্র এসো, স্তনপান করো
আর খেলার প্রয়োজন নেই, ক্ষুধায় শান্ত হয়েছে, এখন ভোজন করাই তোমার উপযুক্ত কার্য। হিন্দি। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 11वां अध्याय 15वें श्लोक में यथा दूर से ही बुलाती हुई यशोदा कहती है कि हे लाला कृष्ण, हे कमल नयन, हे प्यारे पुत्र, शीघ्र ही मेरे पास आओ, स्तनपान करो, अब अधिक खेलने की आवश्यकता नहीं है, तुम भूख से श्रांत हो, अतः तुमको इस समय भोजन करना ही उचित है। और है इसमें? नहीं, और तो नहीं है। नहीं है, हम हिंदी में है। स्कंद वाला क्या? दशम स्कंद के 11 हाँ, एक दशम स्कंदे एकादश हाँ, अध्याय ठीक है पूरा हो तो गया। ऊपर एक और अपन को 18 नंबर भी है। 18 नंबर है। 18 স্টার্টিং से है ना। हाँ, তথাপি খেলা বিষয়ে জয় করিবার জন্য পরস্পর স্পর্ধা হেতু শ্রীকৃষ্ণ খেলিবার বাসনা করিয়া লাগিলেন এবং তাহার কথায় আসিলেন না। তখন যশোদা পুত্রের পরাভব করিবার জন্য বিচ্ছেদ রহিত অর্থাৎ বৈরিতা শূন্য সে যে সজাতীয় স্নেহ তাহার দ্বিতীয় পাত্র এবং আমার বাক্যের আদর বিষয়ক বলভদ্র অবশ্য বশ্য হইবে এই চিন্তা করিয়া সদয়ভাবে আহ্বান করিতে লাগিলেন। দশম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় 9 শ্লোকে হে রাম, হে তাত, তুমি কুলপ্রদীপ, অনুজ সহ শীঘ্র আগমন করো, কখনো প্রাতকালীন আহার করিয়া আসিছে। হে পুত্র, দেখিতেছি তোমার খেলায় শান্ত হইয়াছে। হে দ্বাদশ, ব্রজপতি নন্দ ভোজন করাইতে লাগিলেন, তোমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন, আসিয়া আমাদের প্রতি উৎপাদন করো। পরে অন্যান্য বালকদের প্রতি বলিলেন, ওরে বালকগণ, তোমরা সকল আপন আপন গৃহে যাও। হিন্দি। इतना कहने पर भी जब खेल में विजय प्राप्त करने के लिए परस्पर स्पर्धा पूर्वक खेलने की तृष्णा वाले अतएव पास में न आते हुए श्री कृष्ण को फटकारती हुई श्री यशोदा जी विच्छेद रही सजाति समान स्नेह के द्वितीय पात्र एवं अपने वचन मात्र का आदर करने वाले होने के कारण अवश्य में वश में रहने वाले श्री बलभद्र को ही दयापूर्वक बुलाने लग गई। श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद 11वां 16-17 श्लोक में यथा हे राम, हे तात, हे कुलनंदन, तुम अपने छोटे भैया के सही शीघ्र ही चले आओ। हे लाल, तुमने प्रातः काल ही आहार किया था। हे पुत्र, मैं देख रही हूं तुम खेलने से थक गए हो। हे दक्षाण वंशोत्पन्न राम, व्रजपति श्री नंद जी भोजन करने थाली पर बैठ गए हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक तुम नहीं आओगे तब तक एक घास भी नहीं तोड़ेंगे, अतः मेरे साथ घर की ओर आओ, हम दोनों का प्रिय कार्य करो। हे बालकों, तुम सब अपने अपने घरों को जाओ। इस प्रकार अन्य बालकों से भी कहा। তারপর মাতার হর্ষ নিমিত্ত কৃষ্ণকে ক্রীড়া হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য সংকর্ষণ আকর্ষণ করিলে ব্রজেশ্বরী ছলের সহিত উৎসাহপূর্বক বাক্য বলিতে লাগিলেন। দশম স্কন্ধে 11 অধ্যায়ে 9 শ্রেণী শ্লোকে যথা তদন্ত পুনর্বার আপনার বালককে বলিতে লাগিলেন, তাত খুঁড়িয়া ধর, তোমার সকল অঙ্গ দূষরিত হইয়াছে, স্নান করিব, চলো বৎস, আদ্য তোমার জন্মক্ষেত্র সূচি হইয়া ব্রাহ্মণ দেহকে গো সকল দান করিতে হইবে। পুনর্বার তৎকালে গৃহ হইতে বালকদের আসিতে দেখিয়া তাহাদের মর্জন স্নানাদি কার্য দ্বারা নিজ স্পৃহাকে বর্ধিত করিয়া বলিলেন। দশম স্কন্ধে 11 অধ্যায় 9 শ্লোকে বৎস, দেখি দেখি তোমার ওই সকল বয়স্ক বালকগণ স্ব স্ব জননীগণ কর্তৃক কোন মার্জিত শরীর ও সুন্দর রূপ অলঙ্কৃত হইয়াছে, তুমিও চলো, স্নান করিয়া আহারের পর অলঙ্কৃত শরীরে আসিবে, আসিয়া পুনরায় খেলা করিবে। হিন্দি। तदंतर माता के हर्ष के निमित्त श्री कृष्ण को क्रीड़ा से निवृत्त करने के लिए श्री दाऊ जी अपने हाथ में पकड़कर जब खींचने लगे तब श्री ब्रजेश्वरी छल एवं प्रोत्साहन पूर्वक श्री कृष्ण को ही बोली,
हे तात, तेरे सारे अंग धूलि से दूषित हो गए हैं, चलो स्नान करो। आज तेरा जन्म नक्षत्र है, अतः पवित्र होकर ब्राह्मणों को गैयाओं का दान करो। पुनः उसी समय अपने अपने घर से आए हुए बालकों को दिखाकर स्नान भोजन आदि के प्रति श्री कृष्ण की स्पृहा को बढ़ाती हुई बोली, हे लाला, देखो देखो तो सही अपने मित्रों को, ये अपनी अपनी माताओं ने स्नान कराकर अलंकारों से सजाकर कैसे सुंदर बना दिए हैं। तुम भी घर को चलकर स्नान करके भोजन करके अलंकारों से अलंकित होकर पुनः दिन भर खेलते रहना। म्यूट में आप प्रभु जी। সে যাই হোক, এই প্রকারে বাল্যকাল হইতেই ব্রাহ্মণগণের পালনে শ্রীকৃষ্ণের আত্মতুষ্টি ঘটিত। সুতরাং সে কাজের জন্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের গোদানের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্তুতি স্তম্ভিত হইলেন এবং আহ্লাদানের দিক করিবার চিহ্ন দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভোজনার্থে আহ্বান করিতে দুরন্ত কৃষ্ণকে ধরা যাইবে এরূপ আহ্বানের চিহ্ন বুঝিয়া লইয়া জননী সেই সংকেত দ্বারা কৃষ্ণ আকর্ষণ স্থির করিলেন। ওই সংকেতে কৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলে পর যশোদা ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া বলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে হস্ত ধরিয়া গৃহে আনয়ন করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही लेकर श्री कृष्ण को ब्राह्मणों के पोषण से आत्मसंतोष होता था, अतः उसी कार्य को करने के लिए श्री कृष्ण स्तंभित हो गए। इसीलिए बुलाने आदि के लक्ष्य से श्री यशोदा जी धीरे धीरे लाला के पास आई और बलदेव जी के सहित श्री कृष्ण को भुजाओं में पकड़कर अपने घर को ले आई। এইরূপ পত্নী বাক্য দ্বারা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ। हिंदी में एक पैराग्राफ और होगा, हिंदी में 23 भी। मैं 21 पढ़ रहा हूँ अभी। हाँ, हिंदी में आप पढ़ लिए, हिंदी में होगा 23 भी होगा, उसके बाद आप पढ़ो। 23 के साथ अच्छा, वो पढ़ लिए प्रभु। हाँ। तदनंतर आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र अरे परेशान क्या हुआ? अभी हम 21 पढ़ेंगे। हाँ, पर हिंदी में 23 आप पढ़ चुके हैं, हिंदी बाकी है, बंगला में आप पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हम 23? हम 21 ही खत्म नहीं किया। अच्छा, आप पढ़िए, क्या लाइन है पहले? এইরূপ প্রত্যেক বাক্য দ্বারা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত वो হইয়া होगा 24 है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। हाँ, एक नंबर आपका पीछे है। तदंतर आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, यह वाक्य श्री यशोदा जी ने लाला को बहलाकर घर ले जाने के लिए मिथ्या रूप से ही कहा था। तो भी श्री कृष्ण के आग्रह के कारण श्री ब्रजराज पत्नी यशोदा ने उस जन्मोत्सव स्वरूप पर्व को अच्छी प्रकार ग्रहण किया एवं ठाट बाट से मनाया। जिस पर्व में दुष्टों की कुदृष्टि के निवारण के लिए ब्राह्मणों के द्वारा उच्चारित मंत्र देवताओं के अधिष्ठान रूप यंत्रों के सहित बारंबार विन्यास को प्राप्त हुए। এইরূপ প্রত্যেক বাক্য দ্বারা সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ত্রিকালজ্ঞ সর্বদর্শী শ্রীমান উপনন্দ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধা এবং পুত্রবতী যশোদা ও রোহিণী দুইজন ভাতৃ জায়ার সন্তানের প্রতি সত্যই আশঙ্কা হইয়াছিল, যেহেতু এই গোষ্ঠভূমির প্রকোষ্ঠ দুইজন দ্বারা যেন ব্যপ্ত দেখিতেছি। হোক, ব্রজরাজের সভায় গিয়া ইহার বিচার করিব। উপনন্দের পত্নী বলিলেন, সেই সভাতে আপনাতেই বিচার থাকি, অর্থাৎ আপনাকেই বিচার করিতে হইবে। হিন্দি। इस प्रकार अपनी पत्नी के वाक्यों के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत को समझकर त्रिकालज्ञ सर्वदर्शी श्रीमान उपनंद जी इस प्रकार परामर्श विचार करने लग गए कि पुत्रवती यशोदा एवं रोहिणी रूप इन दोनों भातृजायाओं भोजाइयों की
अपनी संतान के प्रति जो आशंका है वह सत्य ही है, क्योंकि यह गोष्ठ भूमि का प्रकोष्ठ प्रायः दुष्ट जनों के द्वारा व्याप्त सा दिखाई देता है। अस्तु जो हो, ब्रजराज की सभा में जाकर ही विचार करेंगे। তারপর প্রাতঃকালে গোসমূহের গোষ্ঠ মধ্যস্থিত এবং সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় আধার স্বরূপ ব্রজরাজের সভাসদ জনগণ দ্বারা বিরচিত সভা মধ্যে গোপগণ মিলিত হইয়া পর্যালোচনা করিয়াছিলেন যে এইখানে গোপাল আদি কার্য কোন আনন্দে সম্পাদিত হচ্ছে না, চিরকাল বাস করাতে বৃহদনের বৃক্ষ সমূহাদি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ওই সকল সভাস্থিত বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ ও শ্রীমান রামকৃষ্ণের প্রেমে সমৃদ্ধিপন্ন শ্রীমান উপনন্দ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা আনন্দ লাভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহার নিজ ক্রূররূপ পল্লঙ্ক উত্তম রূপে অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি চিবুক ধরিয়া মিথ্যা প্রশ্ন করিতেছিলেন এবং বিবিধ খেলার দ্রব্য প্রার্থনা করিবার জন্য চঞ্চল হইয়াছিলেন। তখন উপনন্দ সকলের রুচিকে বাক্য বলিলেন, এই বৃহদ্দনে ব্রজরাজের সংকুচিত ভাব পর্যালোচনা করিতে সমস্ত শিশু সন্তানের ক্ষিত পক্ষ অবলম্বন করিলে। হিন্দি। श्री उपनंद जी की पत्नी बोली, उस सभा में विचार भी आपके ही अधीन रहेगा। तदंतर प्रातः काल ही गो समूह के गोष्ठ खिड़क में स्थित एवं सब प्रकार के प्रयोजनों की आधार स्वरूप तथा सबका सम्मान करने वाली श्री ब्रजराज के सभासदों से विराजमान सभा में सभी गोपगणों ने सम्मिलित होकर विचार किया कि इस स्थान पर अब गोपालन आदि कार्य सरलता पूर्वक संपन्न नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिक समय तक निवास करने के कारण महावन के आसपास के वन प्रायः नष्ट हो गए हैं, अर्थात वृक्षों से रहित हो चले हैं। उस सभा में भी वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध श्री राम कृष्ण के प्रेम से समृद्ध श्रीमान उपनंद जी ने श्री कृष्ण के द्वारा महान आनंद प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने भी उनकी गोद रूप अपने पलका को अच्छी प्रकार अलंकित कर दिया, अर्थात श्री कृष्ण उनकी गोद में बैठे हैं। बीच बीच में उनकी ठोड़ी को पकड़कर बालोचित स्वभाव से मिथ्या प्रश्न करते हैं एवं अनेक प्रकार के खेलने के खिलौने मांगने के लिए लालसा से युक्त हैं। कहते भी जाते हैं कि बाबा हमें खिलौना दिला दो। ऐसे श्री उपनंद बाबा उस समय सभी के रुचि का वाक्य बोले तथा इस बृहद वन महावन में श्री ब्रजराज के संकोच की पर्यालोचना करते हुए बाबा ने समस्त शिशु संतानों के हित पक्ष को भी दृष्टिगोचर करा दिया, अर्थात बालकों से लेकर सारी प्रजा का हित भी अपने वचनों में दिखा दिया। यस, सुधामय माता जी का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है। যথা এই স্থানে থাকিও না। এই প্রকার আপনারা যে ব্রজের হিতকর বিষয় প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু আমার বিবেচনায় তাহা অত্যন্ত শিশুদিগের পক্ষেই প্রধান হিতকর বিষয় বলিয়া বোধ হয়। जो स्थान इस लोक एवं परलोक में दुख देने वाला हो वह स्थान त्याग देने योग्य है। नहीं पर वो आगे ऊपर पढ़िए 28 मेरा बुक में नहीं है। 28 है प्रभु जी, पेज नंबर 231। हाँ है। उनके वचन ये हैं, यथा हे सभासदों, आप सब ने इस स्थान पर हम सबको अब नहीं रहना चाहिए, इस प्रकार का जो हितकर वचन कहा है, यह वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत छोटे छोटे बालकों का प्रधान हितकर मालूम पड़ता है। हमारे छोटे भाई एक सेकंड बस, ये पढ़ाई नहीं हुआ। আমার কনিষ্ঠ ব্রজরাজের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নানাবিধ যত্নে রক্ষিত হইলেও যখন তাহাতে বিবিধ উপদ্রব সংঘাটিত হইয়াছিলেন, তখন বাস
ত্যাগের পক্ষে ইয়া অপেক্ষা আরো অধিক কারণ কি আছে? হিন্দি। हमारे छोटे भाई जो श्रीनंद हैं, उनके पुत्र श्री कृष्ण के ऊपर अनेक प्रयत्नों से रक्षित होने पर भी जब इस महावन में अनेक उपद्रव संगठित हो गए, तब वास परित्याग के लिए इससे अधिक और कौन सा कारण बाकी रह जाता है? म्यूट में अब- म्यूट है बाबू। যদি বলো সেই সেই উপদ্রব সকল ঘটিলে কেবল শ্রী নারায়ণের পরিত্রাণের উপায়, তথাপি তাহাতে রক্ষণের ভার দেওয়া নারায়ণের পরায়ণ অর্থাৎ একান্তি ভক্তগণের অভিপ্রেত নহে। তাৎপর্য এই যে সম্রাটের নিকট তন্দুলকন প্রার্থনার মতো যিনি পরম পুরুষার্থ দাতা, তাহার উপর দেহ গৃহাদি রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া বিবেচক ভক্তগণের মনেও করেন না। তারা সকৃত কর্মফল বলিয়া নীরবে সহ্য করেন। यदि कहो कि अब उन उपद्रवों के होने पर केवल परमेश्वर श्री नारायण की रक्षा ही अवलंबन है, तो भी उनके ऊपर अपने मामूली कार्यों के लिए रक्षा का भार देना भगवान के अनन्य भक्तों को अभिष्ट नहीं है। तात्पर्य यह है कि प्रसन्न हुए चक्रवर्ती राजा से तंडुलकन मांगने की तरह प्रेम लक्षण पंचम पुरुषार्थ को समर्पण करने वाले प्रभु के ऊपर देह गेह आदि तुच्छ वस्तुओं की रक्षा का भार देना विचारशील तत्वज्ञ भक्तजन अच्छा नहीं समझते। अपने किए हुए कर्मों का फल समझकर चुपचाप उपद्रवों को सहते रहते हैं। तो ये प्रेम लक्षण पंचम पुरुषार्थ क्या बोल रहे हैं? कृष्ण प्रेम। फिफ्थ, अच्छा 4 हो गया, 4 के बाद ये 5वां, इसको कृष्ण प्रेम, भगवत भक्ति। কৃষ্ণ প্রেম। যে ব্যক্তি গমন করিয়া থাকে সেই জন পরিহার্য এবং গ্রাহ্য এই উভয় স্থান অনুচিন্তন করিবে। তন্মধ্যে যাহা দুঃখের কারণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে, আর যা সুখের আশ্রয় তথায় গমন করিবে। হিন্দি। जो व्यक्ति कहीं से चलना चाहे उसको त्याज्य एवं ग्राह्य इन दोनों स्थानों का पहले विचार कर लेना चाहिए। उन दोनों में से जो दुख का कारण हो उसे त्याग देना चाहिए, और जो सुखों का आश्रय हो वहीं पर चले जाना चाहिए। सब काहुत में लॉग इन करिए प्लीज। যে স্থানে ইহলোক এবং পরলোক দুঃখ ঘটিয়া থাকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিবে। সম্প্রতি এই বৃহদ্দন মহাবন প্রতিক্ষণে ঐহিক দুঃখের কারণ হইয়াছে। যে স্থানে ইহলোক ও পরলোক সুখ ঘটাইয়া থাকে সেই স্থানে অবলম্বনীয়। দেখুন, এই বৃন্দাবন সমস্ত সুখের চরম সীমা প্রাপ্ত এবং অতিশয় পবিত্র। হিন্দি। जो स्थान इस लोक एवं परलोक में दुख देने वाला हो वह स्थान त्याग देने योग्य है। इस समय यह बृहद वन महावन नामक वन प्रतिक्षण लौकिक दुखों का कारण बन गया है। जो स्थान इस लोक एवं परलोक में सुखदायक हो वही स्थान ग्रहण करने योग्य है। यह वृंदावन दोनों लोकों के समस्त सुखों की अंतिम सीमा को प्राप्त है एवं अतिशय पवित्र भी है। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, शील प्रभुपाद की जय। जय जय